Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School, Standard 8, Grammar, Chapter number 6, the sentence, simple, complex and compound. We all know about that. What is the sentence? Sentence is a group of words which has a complete meaning and it is arranged in the complete form. We all know about that. We also know that what is phrases, what is clauses, and we also know about the types of sentence. There are three types of sentence from their structure. उसका जो स्ट्रक्चर होता है मतलब कि जिस तरह से अरेंज किया हुआ होता है सेंटेंस, उस तरह से उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स से अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. Sentences can be classified as a simple, complex and compound sentence. 3 types: simple, complex and compound sentence. We have to remember that. How many types of the sentences? Then we have to ask that there are 3 types of the sentences, which simple, complex and compound. Now we will see the definition and the deeply instruction about these 3 types of the sentences. What is the meaning of simple sentences? Let's see. Simple sentence. A sentence, that is the definition of simple sentence. A sentence that expresses a single complete thought and has only one finite verb is called a simple sentence. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें ये याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस दैट द सेंटेंस, एक तो पहले उसका मीनिंग होना चाहिए एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब. जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, हिज फादर इज ओनली वन वर्ब. क्लियर? देन वी हैव टू रिमेंबर दैट अ सिंगल कंप्लीट थॉट, उसका मीनिंग होना चाहिए. फिर ये याद रखना है कि वन फाइनाइट वर्ब, एक ही वर्ब होता है उसमें. That's called simple sentence. Clear? A simple sentence has only one subject. ये भी याद रखो कि a simple sentence have only one subject and one predicate. Because it is simple sentence, so it has only one subject, one predicate, one verb. That's called simple sentence. यहाँ पर देखिए, his father is an engineer. His father is an engineer. His father is our subject, only one subject. Then is our main verb, that's only one verb. And is an engineer, that's our is an engineer, that is predicate, only one predicate of the sentence. हमें subject, predicate, sentence, meanings उसके बारे में पता है. Clear? तो दैट इज़ द सिंपल सेंटेंस. वी कैन डिफाइन दैट. अगर आपको रिकॉग्नाइज करने का है कि फाइंड आउट द सिंपल सेंटेंस, आपको सेंटेंसेस दिए गए हो, उसके प्रकार बताने कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, यू हैव टू राइट डाउन द टाइप ऑफ द सेंटेंस. इफ वी नो द डेफिनेशन एंड द डिटेल अबाउट इट, then we can say that is simple sentence, otherwise complex or compound. So we have to remind you, we have to remember these rules. Clear? Next, complex sentence. Complex, complicated, नाम पर से पता चलता है ना. तो complex sentence किसे कहते हैं? Let's say a complex sentence is a sentence having only one independent clause and is called a principal clause. Then one or more dependent clause called subordinate clause. अब जब हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था तो चैप्टर 5 में वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट क्लोजेस. We have learned about principal clause and subordinate clause.
If you don't have remind that, then see that video, the clauses, then you will be understand. आप वो वीडियो देख के प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 5 में, वो आप समझ सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज। मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज ओनली वन ही होता है, एंड द अदर विल बी डिपेंडेंट क्लोज, मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लोज, कि जिसका वो मेन क्लोज पर डिपेंड होता है, उसका अकेले मीनिंग नहीं होता, बट इट हैव टू डिपेंड ऑन द मेन क्लोज। दैट कैन बी वन और मोर क्लोजेस इन दिस सेंटेंस। जैसे कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुड कंटेन एटलीस्ट 2 फिनिट वर्ब्स, क्योंकि उसमें 2 सेंटेंस को जॉइंट किया हुआ आता है, तो 2 फिनिट वर्ब्स तो उसमें हो गए, बट one clause will be dependent on the second clause। मतलब कि प्रिंसिपल क्लोज मेन क्लोज पर वो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब दोनों जो सेंटेंस है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हु, व्हाट, व्हाइल, दैट ऐसे कंजक्शन से जॉइंट किया हुआ होता है। लेट्स से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर used to introduce subordinate clauses and join them to main clause। मेन क्लोज के साथ उसे जॉइन करने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई नो द मैन हु इज अ फेमस मैजिशियन। अब आई नो द मैन इज अवर प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज। आई नो द मैन, इसका मीनिंग इंडिपेंडेंटली होता है, दैट्स द प्रिंसिपल क्लोज। देन हु इज द सबऑर्डिनेट कंजक्शन, देन इज अ फेमस मैजिशियन, उसका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता, उसके पास 2 डिफाइनेट वर्ब्स है, यहाँ पर नो है वो वर्ब है और यहाँ पर इज है वो वर्ब है, मतलब कि इस सेंटेंस में 2 फिनिट वर्ब्स भी है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है और 2 क्लोजेस भी है, जिसमें फर्स्ट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज है और सेकंड क्लोज इज द डिपेंडेंट, मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये सभी रूल्स को देखते हुए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? प्रिंसिपल क्लोज, कंजक्शन एंड हु इज अ फेमस मैजिशियन इज अवर सबऑर्डिनेट क्लोज। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिनाइडेड दैट ही हैड स्टोलन द पर्स, उसने मना कर दिया कि उसने पर्स नहीं चोरी किया है। तो ही डिनाइडेड, ये जो है उसका मेन क्लोज, उसने मना किया, बट किस बात का मना, तो दैट है वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। देन ही हैड स्टोलन द पर्स, दैट्स अवर सबऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। इस तरह से हमें पता चलेगा कि दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट वी विल सी द कंपाउंड सेंटेंस। लेट्स सी द कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more independent clauses joined together by conjunctions। conjunctions से joined किए हुए 2 सेंटेंस या अदरवाइज ज़्यादा सेंटेंस, बट वी हैव टू रिमेंबर कि कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट 2 or more independent clauses। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था कि 1 इंडिपेंडेंट क्लोज एंड 1 डिपेंडेंट क्लोज, बट इन दिस सेंटेंस मीन्स कंपाउंड सेंटेंस, दोनों क्लोजेस है वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेट्स सी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, उसे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस से ज्वाइन किया जाएगा। तो कैसे कंजक्शंस? तो एंड, स्टिल, बट, येट, और, फॉर, सो, एल्स, अदरवाइज, एज वेल एज, एक्सेट्रा। ऐसे जो कंजक्शंस है उससे 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जब ज्वाइन किया जाता है
रिमेंबर दैट कि इंडिपेंडेंट क्लोज को जब ज्वाइन किया जाता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कैसे? फिर उसे ओनली कंजक्शन से, ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, अदरवाइज कोरिलेटिव कंजक्शंस उससे भी ज्वाइन, जैसे कि जो कंजक्शंस है वो दो नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो कंजक्शंस जो है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे कि हार्डली व्हेन, इफ देन, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह से कोरिलेटिव कंजक्शंस भी कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। अब हमें ये समझना है कि अ सेंटेंस विथ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ये याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगे, इवन विदाउट सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज अगर ना हो और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज को ही ज्वाइंट अगर किया गया हो तो दैट इज ऑल्सो कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस के क्लोजेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं बट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Let's see the example and we will understand it. He went to the market, but the shops were closed, so he came back home. अब यहाँ पर 3 क्लोजेस को ज्वाइन किया गया है एंड 3 क्लोजेस ऑल आर इंडिपेंडेंट क्लोज एंड दे आर कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन but and so. We will see he went to the market. That sentence, it has its own meaning but it is joined with but the shops were closed. यहाँ तक भी उसका मीनिंग हो सकता है कि वो मार्केट गया पर शॉप्स क्लोज थी। सो इसीलिए ही केम बैक, वो वापस आए। ये इतना बड़ा सेंटेंस दो कंजक्शन से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट क्लोज भी है और तीनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस है और कंजक्शन से ज्वाइन किए गए। मीन्स कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो इस तरह से तीनों प्रकार के सेंटेंस जो है अलग अलग, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से समझना है। Thank you. Have a nice day and take care.